Ketan Tare Saab also with us, Sunil Gharat is there, and Vishwas Matre and all guests. Welcome all of you. Now is going to be Kapil Patil. Open the bowling attack, facing him left-handed batsman Umi Kene. Umi Kene played a fantastic knock in previous match. What I start, he made 26 runs. One of the class left-handed batsmen. Umpire Paresh signaling game on. Umpire Paresh and umpire Amit Wagmare. These two are the on-field umpire. For Umi Kene, there is a backward point, short third man, cover point, extra cover inside the ring, wideish mid-on, straightish mid-on, and short backward square leg. Here goes Wadigar Express Kapil. First ball cutting back to the batsman, equally played straight to fielder, and there will be no run. What a start, lovely ball indeed, cutting back to the batsman. अगदी बरोबर सुरेख चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. धाव घेण्याचं मानस होतं, मात्र धाडस तिथे केले गेलं नाही, कारण चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं. Kapil Patil, the key bowler of Wadigar. Here he go. Left arm over the stumps. But this time a lovely looking drive. Straight to fielder. Could be run out chance. Need a direct hit. They threw for a risky single. So Umi off the mark with one. And Naneshwar Sport Diva Navi Mumbai one without loss. अगदी बरोबर ओमी केने याने एकेरी धावने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. एक चौथी धाव पूर्ण करून स्वतःचा संघाचा अकाउंट ओपन करतोय. Yes, चुरा लिया है तुमने जो रन को. Risky single taken by Umi. Now Tushar Patil on his strike, facing key bowler Kapil Patil. Here he go, left arm over the wicket. This time balloon in the air. What a magnificent stroke indeed. Swung as ball high of the air over the mid wicket. Fantastic timing, 6 runs. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळते. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. सुरेख फटका, पिकअप शॉट, चेंडूला केले स्वंग आणि रन मिळतील 6 रन. Great stroke indeed. Tremendous power. Going on out of park. Fantastic timing and clean and neat pickup. So Tushar Patil off the mark with 6er and his score is 7 without loss. Kapil Patil, left arm over the stumps. Balls to Tushar. Missed time stroke. Could be caught. Men under it. Oh, misjudging. Chance of run out also. And umpire refer the decision to third eye. येस, तिसऱ्या पंचाकडे मैदानी पंचाने हा निर्णय मात्र सोपवलेला आहे. Very drama cricket going on the middle. Fine delivery from Kapil Patil. Tushar once more looking a big stroke. Unconventional it, leading edge and drop by bowler on his follow through. मैदानी पंचाने तिसऱ्या पंचाकडे मदत मागितलेली आहे. थर्ड आहे. फर्स्ट रेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ग्राउंड में, अंपायर का कहना है. देखना है तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय को सौंपा गया है. हालांकि देखा जाए तो जो मिड ऑन के फील्डर थे वो चाहते तो इस कैच को लेते, लेकिन खुद बॉलर गए थे और यही कारण था कि कैच छूटा. देखना है तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है. This wonderful telecast comes to you, the one and only one, the big web tenniscricket.in, the miracle of telecast. अगदी बरोबर. अद्भुत शो न भूतो न भविष्यती असा मेगा इव्हेंट आपल्याला पाहायला मिळते. स्वप्नवत स्पर्धा आपण पाहतोय. In comes return and we still waiting the decision of third eye. आणि तिसऱ्या पंचांचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख येतोय, बाबे सर आपण नेहमीच उल्लेख करतोय की पहिला फलंदाज ज्याचा मित्रांनो आज वाढदिवस आहे, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंडुलकर, तिसऱ्या पंचांकडून बाद दिला गेलेला पहिला खेळाडू ठरला होता, ज्याचा जन्म आजच्या दिवशी 24 एप्रिल 1973 मध्ये झाला होता. बिल्कुल. सचिन तेंदुलकर स्नेल की थ्रो पे आउट हुए थे. टेस्ट क्रिकेट में पहले शिकार और भिवंडी टेनिस क्रिकेट के पहले शिकार
बीसीसी बोरियोली के पूर्व विकेट कीपर बैट्समैन इरफान मुल्ला, जो नगर अध्यक्ष चषक 2000 में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के शो में, और क्या डिसीजन है? यस, इज आउट. तर फलंदाजाला जावे लागेल डगॉटच्या आसऱ्याला. पहिला फलंदाज धावच्या रूपाने बाद. Yes, look at that. First wicket has gone now. Batsman out Tushar for 7 and his score is 8 for the loss of 1 wicket. 8 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. देखिए, सचिन तेंदुलकर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. आज उनका जन्मदिन है और सारे भारत की तरफ से, सारे अंजूर की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं. एक ऐसा क्रिकेटर जिसने सेंचुरियों की सेंचुरी लगाई. अगदी बरोबर. आणि आणखीन एक विक्रम आपण पाहतोय स्वतःच्या वाढदिवशी जे मोजके फलंदाज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतात. कारण आजच्या दिवशी मित्रांनो 1998 मध्ये शारजा इथे जो वन डे सामना झाला होता त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांची धुलाई करताना 134 धावा सचिन तेंदुलकर यांनी आजच्या दिवशी करून काढल्या होत्या 1998 मध्ये. बिल्कुल. शेन वॉर्न को डबल स्टेप पे आके उन्होंने शारजा के स्टैंड में सिक्सर लगाए थे और वहीं से शेन वॉर्न की भी धुलाई शुरू होगी. शेन वॉर्न जे आपल्यामध्ये सध्या राहिलेले नाहीत, मात्र पहिलं IPL करंडक राजस्थान रॉयल संघाला त्यांनी जिंकून दिला होता. कपिल पाटिल नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं. किशोर पाटिल, उनके लिए भी सेम फील्ड है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर. 6 रन. सर एक फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. जसा चेंडू बॅटवर आला बाबे सर तसा सीमारेषा बाहेर गेला. कमाल का शॉट. इसे कहते एक हमारी एक तुम्हारी चलता हुआ. गजब का शॉट खेला पैरों के सामने. ये देखिए थोड़ा आगे रख दिया था वहां पर और ये देखिए कितना अच्छा फॉलो थ्रू है. बैट का स्विंग देखिए, गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर लगी हुई थी 6 रनों की. जिद्दी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय. देखिए इस ग्रुप की टॉप टीम का सवाल है तो जिद्दी क्रिकेट रहेगा ही. टॉप टीम का जब सवाल रहेगा तो जिद्दी क्रिकेट तो रहेगा ही, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम ग्रुप डी से चोटी पे चली जाएंगी और जिस तरह गौली सर ने बताया कि टॉप 16 में उनका समावेश हो जाएगा. कपिल पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा हवा में गेंद और बहुत बढ़िया कैच. रनिंग कैच, कैचेस विनिंग मैचेस, इससे अच्छा कैच नहीं हो सकता है. हालांकि अपने बाईं ओर जाकर इस कैच को एक्स्ट्रा कवर में लिया है और आउट हो गए बैट्समैन किशोर पाटिल. कॅच ऑफ द मॅच. सर एक झेल तिथे पकडला गेलेला आहे आणि असे झेल खूप अवघड असतात. असे ते शक्य आहे आणि शक्य करून दाखवलेलं आहे. हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे हा झेल पकडला. आताचा अवघड झेल होता आणि झेलबादच्या रूपाने दुसरा फलंदाज बाद होतोय नवी मुंबई या संघाचा. इस वक्त वाडेगर को मिलने वाली ये दूसरी सफलता है और वाडेगर का ताल्लुक कल्याण से है. और देखिए ये भी एक इत्तेफाक है कि कल्याण की टीम खेल रही है और KDM-C में डॉक्टर गौली सर आंखों के सर्जन हैं. और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है या गेंद को साइड करने में प्रॉब्लम है तो तुरंत जाइए उनके पास. लेकिन NCP ट्रॉफी की भी वो कमेंट्री और ऑर्गेनाइज की आंख है, क्योंकि इस तरह उन्होंने हैंडल किया जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी की. और सुभाष धुमाल को मैं सैल्यूट करूंगा कि सुभाष धुमाल अब उन कमेंटेटर में गिने चुने जाते हैं जहां पर उनकी कमी हर टूर्नामेंट में महसूस होती है. बहरहाल चलते हैं मैच की तरफ. स्कोर है 14 रन, 1 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट गिरे हैं. गेंदबाजी में अतुल भोईरा हैं दूर वाले छोर से. पहली गेंद ऑन दी आप खेला है, पीछे खिलाड़ी है, गेंद को जज कर रहे. बढ़िया कोशिश, जगलिंग 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 एंड ड्रॉप. प्रयत्न तर चांगला केला गेला होता, मात्र झेल पकडू शकला नाही. हात आया लेकिन मुंह नाही लगा.
हे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका गेलेला होता. ये देखिए, जगलिंग 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 एंड ड्रॉप. इसीलिए तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले. धावसंख्या धावप्रकार पाहायला मिळते 15 धावा. 2 फलंदाज बाद होऊन पॅडमध्ये परतल्या. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. अतुल भोईर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आलेला आहे. पीटूचं दुसरं षटक दूरवरच्या टोकावरून. अतुल भोईर, देखिए अतुल भोईर के पास एक क्लास है कि वो गेंदों को गुड लाइन पे पिच करते हैं और क्योंकि उनके पास एक क्षमता है कि गेंदों को बाहर की जानिब भी काटते हैं. बाएं हाथ के बैट्समैन अमोल केनी के पास अब स्ट्राइक आ चुका है. राइट आर्म राउंड स्टंप्स, अच्छा ड्राइव खोद के निकाला, सीधा बॉलर की तरफ रन लेना चाहते थे लेकिन वापस क्रीज में. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. या अगदी पुढ्यामध्ये चेंडू हाताळला होता. चॅनल टू चॅनलला चेंडू हाताळला होता गोलंदाजाने. और शुमात धुमाल चैनल में जब गेंदबाजी होती है तो बात है कि बैट्समैन को ज़्यादा रूम नहीं मिलता है और जब रूम नहीं मिलता है तो बैट्समैन धूम नहीं मचा पाते. अतुल भोईर, अगर बॉलिंग को हम देखते हैं तो वाडेकर के पास अच्छी बॉलिंग है लेकिन नवी मुंबई की जो टीम है उसके पास बल्लेबाजी बहुत मजबूत है. इस मरतबा स्ट्रेट ड्राइव, दिलकश स्ट्रोक, जादीबुल नजर शॉट, 6 रन डाउन द ग्राउंड, स्टँड अँड डिलिव्हर. नक्कीच अतिशय सुरेख फटका आपण पाहू शकता. आणि या फटका खेळल्यानंतर फलंदाजाने जो बॅटचा फ्लो होता सर हे आपण पाहू शकता. अखेरच्या क्षणापर्यंत क्रिकेटिंग शॉट आपल्याला पाहायला मिळते. हे आपण पाहू शकता. क्या बात है. थोड़ी देर के लिए मानो लगा कि ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी ने ये शॉट खेला हो. व्हाट अ स्ट्रोक. आज का सबसे खूबसूरत शॉट. शॉट ऑफ द नाइट. केनी सामना कर रहे हैं अतुल भोईर का. फिर से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ. एक और सिक्सर. अपने रंग में आते हुए ओमी केनी. और एक बात है कि ओमी केनी जब रंग में आएंगे तो शॉट का हर रंग आपको देखने मिलेगा. ये देखिए ऑन दी आप खेला था, उनको पता था मिड ऑफ सर्कल में है, गेंद को लॉप कर दिया लॉन्ग ऑफ पे 6 रन. अगदी बरोबर. ओमी केनी आपल्या फलंदाजीमध्ये सगळे रंग दाखवताना आणि असा एक फलंदाज आहे ज्याच्या नावे 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये शतक झळकवण्याचा विक्रम आहे. 27 रन 2 विकेट. अगर भिवंडी तालुका की बात करें तो बाली ट्रॉफी 2017 में अहमद बलेरी ने शतक लगाया था. 28 गेंदों में 100 रन बनाए थे. छोटी गेंद बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद सीधी मिड ऑफ पे ट्रैवल करती भी कोई रन नहीं. यावेळी फटका तर चांगला होता मात्र एलिव्हेशन साधता आलेलं नाही. निर्धाव चेंडू समाप्ती. बहुत अच्छा टोटल हम कहेंगे अभी तक बना लिया है यहाँ पर नैनेश्वर स्पोर्ट दीवा नवी मुंबई ने. राइट आर्म राउंड स्टंप्स, बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, नहीं रुकेगा, मस्तक पे दस्तक, 6 रन. अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळते. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केलेला फलंदाजाने. अगदी गोलंदाजावर तुटून पडलेला आहे. पूर्णपणे ताकद या फटक्यामध्ये झोकली गेली ते आपण पाहू शकता. हालांकि हल्की सी शॉट गेंद थी, स्टम्प विजन से दिखाया जा रहा है. क्या टेलीकास्ट है टेनिस क्रिकेट का, मिरेकल ऑफ द टेलीकास्ट का अजूबा. ये देखिए जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर. मिराकल टेलिकास्ट मिराकल इव्हेंट मध्ये आपण पाहतोय. क्या बात है, वाकई में मिरेकल अजूबा इवेंट भी है. और 2 ओवर की समाप्ति पे कह सकते हम कि लूटमार मचा रखी है बल्लेबाजों ने यहाँ पर नैनेश्वर स्पोर्ट दीवा नवी मुंबई के. अगदी बरोबर आहे. आपण डगआउट्स पाहतोय. या खूप खुश आहेत डगआउट्स मधून खेळाडू ज्याप्रमाणे फलंदाजी केली जाते. डगआउट भी बहुत खूबसूरत है. डोम डगआउट है जो टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा हम देखते हैं. डोम डगआउट, हर चीज परफेक्ट. गेंदबाजी में मरता क्या ना करता, कपिल पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि 2 ओवर में 33 और पिछले ओवर में कितने रन दे डाले, 19 रन. कपिल पाटिल
बैकफुट पे गए, फोर्स किया, पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पे, एलिवेशन नहीं है और आउट हो गए बैट्समैन श्रीकांत। नाईट क्रिकेट स्पर्धा आयोजन किती सुंदर फोर व्हीलर 33 बाइक पारितोषिकांचा वर्षाव। देखिए सुबह कुमार ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला था शॉट के पीछे, हालांकि वो जिस तरह से पोजीशन की थी, खेलना चाहते थे काहू कॉर्नर पे, गेंद चली गई लगभग लॉन्ग ऑन पे। अगदी बरोबर. उंची जास्त लांबी कमी, एलिव्हेशन साधता नाही फटक्यामध्ये आणि परिणामस्वरूप झिरबाच्या रूपाने आणखीन एक फलंदाज बाद होते. तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे तो नवी मुंबई या संघाचा. 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ज्ञानेश्वर स्पोर्ट दीवा नवी मुंबई का वाडेकर के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज ने आखिरकार ये विकेट दिला दी है। हालांकि अब तक 2 विकेटें ले चुके हैं कपिल पाटिल। देखिए वाडेकर के पास भी एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है और नवी मुंबई के कैप्टन ज़रूर चाहेंगे कि इस तरह के मैचेस में आपको 60 के ऊपर जाना ही होगा अगर चुनौती देना है। अगदी बरोबर. संघ नाही का कुठल्याही प्रकारचे ढील द्यायला तयार नाही, कारण बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढाई सध्या आपण पाहतोय. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन ओमी केनी। ओमी केनी 3 सिक्सर लगा चुके हैं। नए बैट्समैन अक्षय पाटिल नॉन स्ट्राइक पर है। कपिल पाटिल फुल टॉस गेंद, छोटी बैकलिफ से ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, डीप मिड ऑन पे गेंद को उठाया, 1 रन। धावसंख्या सिंगल वाढून होती, धावफलकावर 34 धावा ऑन ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता. 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पे तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। यहाँ से तो लग रहा है कि 60 को तो क्रॉस करेंगे, लेकिन कहा जाता है क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जर आणि तळणे चालत किंतु और परंतु नहीं चलता है। अगदी बरोबर, कारण क्रिकेट पूर्णपणे अनियंत्रितचा जो खेळ आहे म्हणून क्रिकेटमध्ये प्रेडिक्शन फेल आहे. कपिल पाटिल 4 खिलाड़ी सर्कल में आप देख रहे हैं, एक शॉर्ट कवर भी लगाया गया है। कपिल पाटिल ओ चाइना मैन थी, जल्दी पढ़ लिया, उस गेंद को मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। स्टेडियम वरती बघून आयोजन होत या गार करते कौतुक बघून सारे राष्ट्रवादीच्या शक्ता सुबह जी, परार। सवाल तो मेरा अपना मानना है बैट्समैन का कमाल है। देखिए चाइना मैन गेंद की थी, हाथों के पीछे से कट के अंदर की जानी भाई, बहुत जल्दी पढ़ लिया था, क्रीज में पीछे चले गए, देर से शॉट खेला, रिजल्ट बहुत अच्छा। अगदी बरोबर. बॅकफुटला जाऊन अगदी चांगलं पिक केलं होतं, ओळखलं होतं आणि चांगला फटकाही बॅटमॅनच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. 38 पे पहुंचा है स्कोर। ज्ञानेश्वर स्पोर्ट दीवा नवी मुंबई का 3 विकेट। ग्रुप डी में ये चोटी की टीम का मुकाबला है। फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, इस मर्तबा नट आउट कह दिया गेंदबाज से कि चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेट। चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते आणि खास करून ओमी केनी चांगल्या टचमध्ये आपण पाहतोय. मागील सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक पटकवलं होतं. नाबाद 26 धावांची खेळी केली होती आणि जणू काही तिथूनच पुन्हा एकदा खेळायला सुरुवात केलेली आहे. वाकई में ओमी कह रहे हैं कि मैं हूं ना, क्रिकेट प्लेड फॉर साइड नॉट प्लेड फॉर सेल्फ। उन्होंने जो सिक्सर लगाया स्ट्रेट 6, वो आज के दिन का सबसे खूबसूरत शॉट था, क्योंकि इस तरह के शॉट खेलने के लिए आपके पास सब कुछ चाहिए। स्विंग कर दिया है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। बल्ले से निकली तो बाउंड्री पे नजर आई। सुमित शेठ रणधीर शेठ मार्गदर्शन भारी, योगेश शेठ सुधीर शेठ यांची साथ न्यारी, खाली पब्लिक सारी फिदा टेनिस क्रिकेट का क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि पिछली इनिंग जहां पे समाप्त की थी वहीं से शुरुआत की है। ओमी को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता हुआ वाडेकर टीम के लिए। 45 रन 3 विकेट।
अगदी बरोबर. ओमी याला सध्या बाबे सर टेनिसचा चेंडू जणू काही फुटबॉल दिसतोय, ज्याप्रमाणे ओमी फलंदाजी करतोय. अब उन्होंने अटैक भी किस पे किया है, मजबूत करी कपिल पाटिल पे. कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए. केतन तरे जी काफी खुश हैं क्योंकि आज से स्पर्धा ने काफी गेर बदला है. सुनील गरत काफी खुश हैं. ओ बढ़िया गेंद चैनामैन, और यहां पे मौका था लेकिन थ्रो नहीं लगा. लेकिन इस गेंद की सराहना करनी होगी. इस गेंद ने बैट्समैन को पूरी तरह से खोल के रख दिया था. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. ओमी के लिए चैनामैन गेंद की थी, कट के बाहर की जानिब निकली थी. ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 45. विकेटें गिरी है 3. दोस्तों बने रहिए हमारे साथ. 4 तारीख तक एनसीपी ट्रॉफी क्रिकेट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो. कहीं भी मत जाइएगा. एक से बढ़कर एक टीमें रहेंगी, एक से बढ़कर एक इनामात रहेंगे. अगले डेथ के जो 2 ओवर है उसमें कितना रन बनते हैं, 15 का करंट रन रेट है. आइए सुनते हैं सुभाष धुमाल की मधुर आवाज में. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. 15च्या सरासरीने 45 धावपैकी पाहायला मिळतात. ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई संघ प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. ग्रुप डी मधील हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या अगोदर ग्रुप सी मधून हाफ फुल मधून एकूण मानकुळे संघाने पुढे क्वालिफाय केलेले आहे. ग्रुप ए चा विचार केला तर ग्रुप ए मधून पहिल्या दिवशी जरीमरी काटे आणि पिंपरा सलेवणे या संघाने पुढे क्वालिफाय केला होता. ग्रुप बी मध्ये आरसीसी पेठ संघ आपल्याला क्वालिफाय करताना दिसला होता. ग्रुप सी मधून कालच्या दिवशी जगदीश स्पोर्ट्स आमने आणि आज ग्रुप सी मधून एकविरा मानकुले हे 2 संघ क्वालिफाय झालेले आहेत. ग्रुप बी मधून टॉपवर आरसीसी पेठ संघ आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि आज ग्रुप डी मधून या सामन्यातील विजय संघ आपल्याला टॉपवर पाहायला मिळेल. धावसंख्या 45 आपल्याला पाहायला मिळते. 3 षटकाची समाप्तीनंतर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सर्वेश पाटील येतोय. यावेळी मिस टाइम फटका. चेंडू हवेमध्ये मात्र सेफ लँडिंग होतोय. जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय फायनल एक रिझन मध्ये तोपर्यंत एकेरी धावेने स्ट्राईक रोटेट करतात फलंदाज. धावसंख्या 1 धावेने ओढून होती. आपल्याकडे 46 धावा. 46 हे टीम. देखिए सुभाष, जिस तरह वाडेकर के पास भी बल्लेबाजी है तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे नवी मुंबई के भी कैप्टन चाहेंगे कि 70 के करीब तो जाया जाए. आणि ज्याप्रमाणे फलंदाजी होतंय असं वाटतंय की दिवा नवी मुंबई संघ त्या लक्ष्याकडे डोळे लावून असणार आहे. यस, आर पार की जब लड़ाई रहती है ना, हम नहीं है तुम नहीं, उसमें देखा जाता है हम किसी से कम नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से एरी चोटी का जोड़ लगाया जाता है और इसीलिए मैचेस खूबसूरत होते हैं. देखिए ये 3रा दिन है, अभी 11 दिन बाकी हैं, तो एनसीपी ट्रॉफी के जो रंग है आप देखना ना भूलिए. अगदी बरोबर. याने मात्र चेंडूला हुक केलेला आहे. चेंडू निघून जाईल. स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमापार षटकार तोहफा दिया है. देखिए छोटी गेंद बैट्समैन को जब नजर आती है ना तो उसके आंखों की चमक बढ़ जाती है. इतनी छोटी गेंद मानो खोटी गेंद. क्या गजब का शॉट खेला, खींच के मारा उस गेंद को. 6 रन. धावसंख्या 6 ने वाढते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून होते. ती धावपैकी 52 धावा. अर्धशतकी पूर्ण झालेले आहे. 52. उमी अब सिक्सर से डील करते हुए ये 4था सिक्सर उन्होंने लगाया है और धीरे धीरे अब चिंताएं बढ़ती हुई वाडेकर के कप्तान की. ओमी याच्या फलंदाजीमध्ये कुठल्याही प्रकारची कमी पाहायला मिळत नाही. ज्याप्रमाणे ओमी फलंदाजी करतो मागच्या सामन्यामध्ये नाबाद 26 आणि या सामन्यामध्ये आतापर्यंत नाबाद 32 धावसंख्या ओमी केनी फलंदाजी करतोय. ट्रम्प कार्ड आहे ओमी केनीचा. जर विचार केला तर ज्याच्या नावे आपण जर बघितला तर टेनिस क्रिकेटमध्ये 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये सेंचुरी झळकवण्याचा विक्रम आहे आणि तोच फलंदाज सध्या सलमानीच्या भूमिकेमध्ये 11 चेंडूमध्ये 32 धावसंख्या खेळताना पाहायला मिळतोय. क्या शुभा धुमाल, आपको लगता नहीं कि देर रात मैच हो रहा है, टॉस वाडेकर ने जीता और हमने अक्सर देखा है कि देर रात जब मैचेस चलते हैं तो टॉस जीत के बल्लेबाजी ली जाती. हालांकि रणनीति, हालांकि विकेट अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा है, ऐसा कोई भी बात नहीं कि विकेट में किसी तरह की कोई गेंदबाज को सहायता हो,
लेकिन जब लक्ष्य बड़ा हो जाता है तो टीमें दब जाती. अगदी बरोबर योग्य ते उल्लेख केला. मात्र काही काही संघांची रणनीती कालचा दिवस जर बघितलं तर आरसीसी पेठ जो नाईट रायडर्स या नावाने ओळखला जातोय त्या संघाने बऱ्याच सामन्यामध्ये जर बाबेसर बघितलं तर टॉस जिंकल्यानंतर रजनी क्रिकेटमध्ये फलंदाजी घेण्याचा निर्णय घेतला होता आणि फलंदाजी घेतल्यानंतर ते सामने त्या संघाने जिंकलेले आहेत. आरसीसी पेट को वैसे भी रात के शिकारी कहा जाता है. नाईट रायडर्स समय में कोऑपरेट करें प्लीज. देखिए दो बहुत ही प्रोफेशनल अंपायर खड़े हैं वहां पे, अमित वाघमारे और परेश. धावसंख्या 52. चौथ्या षटकाचे खेळ सुरू असताना सर्वेश पाटील आपण पदे चौथं षटक हाताळतोय. सर्वेश पाटीलला पुन्हा एकदा दुर्वाच्या टोकाकडून लोडा इन करून वळताना सामोर जाईल फलंदाज ओमेकीने जो नाबाद 32 धावसंख्येवर सध्या फलंदाजी करतोय. यावेळी जोरदार प्रयत्नाचा प्रयत्न मात्र चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. औसट ऑफस्टम चेंडू हाताळला होता गोलंदाजाने. अच्छी वापसी क्रीज के कोने से किया था और ये देखिए कट के अंदर की जानिब आई थी, लेकिन लेंथ बहुत परफेक्ट थी और क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहा था वहां पे ओमी ने. ज्याप्रमाणे भावेसर फलंदाज क्रीजचा वापर करतात त्याप्रमाणे बरेच गोलंदाज क्रीजचा वापर करतात. इथे क्रीजचा वापर करताना गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. थोडासा क्रॅम्प आलेला आहे पायामध्ये. यस बहुत अच्छा आपने एक मौजू छेड़ा है. देखिए कॉर्नर ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल प्रिंगल बहुत करते थे, मनोज प्रभाकर करते थे, इमरान खान करते थे, कई ऐसे नाम हैं. और जब आपको गेंदों को अंदर करना होता है तो कॉर्नर ऑफ द क्रीज जो रिटर्न क्रीज रहती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए. दो अच्छे क्रैम्प्स आ गए वहां पर ओमी के पैरों में. अगदी बरोबर आपण उल्लेख केला. डेरेक फिंगल नावाचे जे गोलंदाज होते त्या अशा प्रकारे खूपच क्रीजचा वापर करायचे. 12वें खिलाड़ी इस वक्त पानी लेकर जाते हुए. देखना है क्रैम्प्स जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो फुटवर्क है उसमें आपको पोजीशन करने में थोड़ी कठिनाई होती. सिद्दीक बाबेसर आज मार्शल सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट यांचा वाढदिवस आहे आणि मी मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे आजच्या दिवशी 1998 मध्ये 134 धावा त्यांनी कुठून काढल्या त्या सारख्या वनडे मध्ये आणि असे मोजकेच फलंदाज आहे ज्याने आपल्या वाढदिवशी शतक झळकवण्याचा करण्याचा विक्रम केला. त्यामध्ये विनोद कांबळे ज्याने स्वतःच्या वाढदिवशी ज्यावेळी त्याचं वर्ष अगदी बरोबर 21 वर्ष होतं आणि त्यावेळी त्यांनी शतक झळकवलं होतं. त्यानंतर न्यूझीलंडचे रॉस टेलर, श्रीलंकेचे स्फोटक फलंदाज सनत जयसूर्य असे 4 फलंदाज आपण आंतरराष्ट्रीय पाहतोय ज्या फलंदाजा नव्हे स्वतःच्या वाढदिवशी शतक झळकवण्याचा विक्रम आहे. और भिवंडी तालुका क्रिकेट में जन्मदिन कभी भी रास नहीं आया है, क्योंकि जिस दिन जन्मदिन रहा है आप इतिहास उठा के देखिए, टीमों का उस दिन जन्मदिन का तोहफा टीमें उस खिलाड़ी को दे नहीं पाए. हालांकि इत्तेफाक है, कोई इंसिडेंस है, खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है. दोस्तों कल ठीक 10 बजे 40+ क्रिकेट का घमसान, गोल्डी क्रिकेट का घमसान शुरू होगा और 3 बजे से रेगुलर क्रिकेट ग्रामीण का घमसान शुरू होगा. 128 टीमें एनसीपी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रही है, ये भी एक रिकॉर्ड है. एसी वीआईपी मोस्ट वीआईपी बॉक्स बना है, ये भी एक रिकॉर्ड है और उस बॉक्स में कई दिग्गज नेता आने वाले हैं. और ये भी एक रिकॉर्ड है कि 33 बाइक है, ये भी एक रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड ये है कि पूरे ग्राउंड को एक मिनी स्टेडियम की शक्ल दी गई है. और ये एक रिकॉर्ड है कि गावदेवी अंजूर जिसे हार नहीं मंजूर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हारना गावदेवी अंजूर को मंजूर नहीं. उद्या मित्रांनो सुपर संडे फंडे उद्या 24 एप्रिल 2022 उद्या ग्रुप ई मधील रेग्युलर क्रिकेटमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. ठीक आहे 2 वाजता झेंडा स्पोर्ट्स आडगाव विपक्ष आरडी ओवळी. त्यानंतरचा दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत जयदुर्ग गोवे विपक्ष गावदेवी लकासाते आई स्पोर्ट्स मोगरपाडा. तिसरा सामना आपण पाहणार आहोत दर्श 11 पोगा विपक्ष राधाकृष्ण क्रिकेट क्लब तोंडरे
आणि चौथा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला सुमित कुमार करावे विपक्ष विकास एंटरप्राइजेस विरताने दापोडे. ग्रुप ई मधील हे सामने आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर ग्रुप एफ ला सुरुवात होईल. ग्रुप एफ मधील पहिला सामना भूमी 11 मांडा विपक्ष गावदेवी अंजुरबे आणि त्यानंतर साईस खारबाव विपक्ष वेद 11 धानव. एका बाजूला विश्वनाथ जाधव तर दुसऱ्या बाजूला वंडर ऑफ खारबाव प्रणय पाटिल बाहुबली ऑफ खारबाव. कल का वो बहुत ही बड़ा मुकाबला रहेगा. हालांकि इसी ग्राउंड पे दिनकर से ट्रॉफी में बहुत ही खूबसूरत गेंद पर धुमाले ने धानियों के सुपरस्टार विश्वनाथ यादव को बोल्ड किया था. लेकिन ये एनसीपी ट्रॉफी है, इसको खेलने के लिए, इसको जीतने के लिए आपको जान हथेली पे लेना होगा. अगदी बरोबर. प्रत्येक संघाला खूपच जोर लावावा लागेल कारण टेनिस क्रिकेट विश्वमधील नंबर 1 स्पर्धा आपण पाहतो आणि नंबर 1 स्पर्धेमध्ये नंबर 1चं परफॉर्मन्सही करायला पाहिजे. यावेळी मात्र भेट होते यष्टेक्षकच्या मागे चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय तो मात्र सिंगल धाव पूर्ण करतात फलंदाज. पंचांचा वायरचा शर्यत 1+1 अशा प्रकारे 2 धाव धावफलकामध्ये जोडल्या जातील आणि 2 धावने संघाची धावसंख्या वाढून होते ती धावफलकाची 54 धावा. बैट्समैन के मेरे ख्याल से रीच के बाहर गेंद थी, यही कारण था कि अंपायर अमित वाघबारे ने वाइड घोषित किया. लेकिन इस तरह के रन बचाना होंगे वाडेकर को अगर मैच को जीतना है तो. अगदी बरोबर. वाडेकरला जर दुसऱ्या फेरीमध्ये घर करायचं असेल बनवायचं असेल तर अशा प्रकारच्या धावा रोखाव्या लागतील. सर्वेश पाटील सर्वस्व झोपताना आपण पाहतोय. सध्या गोलंदाजी मार्कवर ध्रुवाच्या टोकाकडून गोलंदाजी हाताळतोय. देखिए वाडेकर खेल रही है 9 घर, कहीं घर आना बाकी है. लेकिन एनसीबी ट्रॉफी तीसरे दिन भारत के घर घर और गांव गांव पहुंच रही. अगदी बरोबर. प्रत्येकाच्या घराघरात आणि प्रत्येकाच्या मनामनात. यावेळी रिवर्स फटका स्विच हिट आणि चेंडू निघून जाईल थर्ड मॅरी धर्मतुल्ला सीमा पार चौकार. ग्रेट शॉट. स्विच हिट भी है, स्वीट हिट भी है, प्लेसमेंट लाजवाब है. पहले ही मन बना लिया था. आइए देखते हैं क्या शॉट खेला है वहां पर. ये देखिए जैसे ही टर्न हुआ बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया. 4 रन. इसे कहते हैं घी जब सीधी उंगली से निकल ना रहा हो तो टेरा करना. अगदी बरोबर. आणि फलंदाज मेंटोस करून फलंदाजी करतोय. यावेळी सुरेख फटका स्कोर ऑफ द विकेट. गॅप मधून चेंडू निघून जातोय सीमा पार हा चौकार. ज्याप्रमाणे सुईमधून धागा ओवळा पोवला जातोय त्याप्रमाणे दोन्ही क्षेत्ररक्षकाच्या मधून बाबे सर हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय सीमा पार चौकारासाठी. Great shot indeed. Control hook shot. No chance to two fielder. Ball is traveling very rapid like a bullet. You can see there. And ball is traveling between two fielder for 4. Great stroke indeed. क्या बल्लेबाजी हो रही है. मूड बना दिया है यहाँ पर बल्लेबाजों ने. और जहाँ पर ओमी सिक्सर से डील कर रहे हैं वहाँ अक्षय पाटिल चौकों से डील कर दे रहे हैं. और उन्होंने बता दिया है कि अक्षय पाटिल ये सीधे साधे अक्षय नहीं है. नक्कीच अक्षय पाटील आपण खेळताना पाहतोय. उद्या साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाकडून आणखीन अक्षय पाटील याला आपण खेळताना पाहणार आहोत. सूरज पाटील, प्रणय पाटील, अक्षय पाटील. वो तो बड़े नाम है. देखना है कल बड़ा काम करते या नहीं. धावसंख्या धावफलकावर 62 चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. प्रणित पाटील गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल. टेनिस क्रिकेट विश्वामधील नंबर 1 स्पर्धा न भूतो न भविष्यती. तब्बल 33 बाईक्स आणि एक 4 व्हीलरचा क्रिकेटचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेची तिसरी रजनी आपण पाहतोय आणि तिसऱ्या रजनीमधील शेवटची लढत 2 बलाढ्य संघामध्ये. हे डगआउटचं दृश्य आपण पाहतोय. रिलॅक्स मूड मध्ये आपण पाहतोय खेळाडूंना. गोलंदाज प्रणित यावेळी मात्र समोर केलेल्या 20 मध्ये शतकशक्ती तिथे वर्ल्ड ऑफ लॉंग मध्ये पंबलिंग पाहायला मिळते आणि परिणामस्वरूप 2 धावा अतिशय वेगाने फलंदाज पूर्ण करा. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहतो. चांगला ताळमेळ. क्रिकेटचं मॅन्युअल जर बघितलं उघडून तर येस नो वेट या 3 गोष्टी रनिंग बिटवीन द विकेटसाठी महत्त्वाच्या असतात आणि ते चांगला कॉलिंग देताना दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या 2 ने वाढून होती ती धावफलकावर 64 धावा 64. अल्पेश गायकवाड
ज्यांच्याबद्दल मी नेहमीच म्हणतोय की समोरचे अनेक स्कोरर एक ओनली ओन पिंपळस गावचे फर्स्ट क्लास स्कोरर अल्पेश गायकवाड सध्या स्कोररच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. हे प्रेक्षक आपण पाहू शकता. यावेळी स्विंग अँड मिस अंधाधुंदी फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडूच्या लाईन मध्ये न येता हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. लगा तो मटका नाही तो फिर झटका. निर्धाव चेंडू समाप्ती. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलक 64 धावा. शेवटचे षटक मार्गास आहे. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. याला मात्र चेंडूला भिरकवून दिलेला आहे. मिड विकेटच्या वरून सीमा पार दणकेबाज षटकार. सुरेख फटका आपण पाहतोय फलंदाजाच्या बॅट मधून ओमी केनी. ओमी ज्याच्या फलंदाजामध्ये कुठलीही नाही कमी. वैयक्तिक 40 धावसंख्या फलंदाजी करतोय. या स्पर्धेमधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम 47 आहे. त्यानंतर 45 धावांची खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि वैयक्तिक 40 धावसंख्येवर फलंदाजी करताना ओमी केनी. धावसंख्या झालेली ती 70 धावा. यावेळेला मात्र सरळ बॅटने अतिशय उत्कृष्ट ओपडायचा फटका आपण पाहतोय. डीप मिड ऑफ रिझर्व मध्ये लॉंग ऑफ द क्षेत्ररक्षक चेंडू फील करतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. क्विक थ्रो आपल्याला पाहायला मिळाला होता. आजच्या रजनीमधील शेवटची लढत आपण पाहतोय. ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई विशाल तुळशीराम पाटील फॅम टीम विपक्ष आपल्याला पाहायला मिळते जय जलेश्वर वाडेकर या दोन संघामध्ये. फलंदाज धावची चौकणी इथे बाद होतोय. तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई या संघाचा. ओमी केनी नर्वस स्फोटीमध्ये बाद झालेले आहेत. 3 फलंदाज आपण पाहिलेले आहेत जे नर्वस स्फोटीचे शिकार झालेले आहेत या चषकामध्ये. अजूनही राष्ट्रवादी चषकामध्ये पहिल्या अर्धशतकाची प्रतीक्षा आहे. या ग्राउंडचा विचार केला तर या ग्राउंडवर हा सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा जो विक्रम आहे तो हिटमॅन ऑफ भरोडे अजय पाटील याच्या नावे आहे, ज्याने मिनी केपीएल स्पर्धेमध्ये एकाच डावामध्ये नाबाद 80 धावांची एक मॅरेथॉन खेळली गेली होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज ठरला होता. आकर्षक बाईक यांनी पटकावली होती. मात्र श्री गणेश भरोडे संघाचं आव्हान या स्पर्धेमधून संपुष्टात आलेलं आहे. यावेळी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता. वाडेश डीप मिड ऑफ रिझन मध्ये चेंडू अडवला जातोय. तो पण फक्त एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या एका धावाने वाढून होती ती धावफलकावर 72 धावा 72. शेवटचे षटक अंतिम षटक आणि शेवटच्या षटकामधील शेवटचा चेंडू. अंतिम षटकामधील अंतिम चेंडू. लास्ट ओव्हर अँड लास्ट बॉल. प्रवीण पाटील बॉलिंग मार्कवर. अक्षयसाठी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. वाडी ऑर्कर चेंडू होता तर निर्धाव चेंडूने या इनिंगची समाप्ती झालेली आहे. निर्धारित 5 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई संघाने आपल्या धावफलकावर धावा जोडल्या त्या 72 आणि 73 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते जय जलेश्वर वाडेकर या संघासमोर. स्कोअर कार्ड आपण पाहू शकता. सर्वाधिक धावा ओमी केनी याच्या नावे 17 चेंडूमध्ये 41 धावा. त्यानंतर अक्षय पाटील 6 चेंडूचा सामना करताना नाबाद 14 धावांचं योगदान दिलेलं आहे आणि 2 फलंदाजी जोरावर 72 धावा धावफलकावर झाल्या गेल्या पहिल्या इनिंगमध्ये आणि 73 धावांचं लक्ष असणार आहे. मित्रांनो उद्या 24 एप्रिल उद्या न्यू पोटी प्लस शेड्यूलने उद्याच्या शेड्यूलला सुरुवात होईल. पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळाला स्वराज्य कशिले विपक्ष गावदेव स्पोर्ट्स केवणी देवे. दुसरा सामना आपण पाहणार होतो 44वा मानकुली बी विपक्ष सचिन स्पोर्ट्स पूर्ण.
तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल नितुपन पिंपलास विपक्ष गावदेव स्पोर्ट्स वेल आहे. त्यानंतर सामना आपल्याला पाहणार होता गावदेव चौठा डोंगे विपक्ष जय कालिका माता कालवर. हे 40 प्लेचं शेड्यूल असणार आहे. त्यानंतर रेग्युलर क्रिकेटला सुरुवात होईल. रेग्युलर क्रिकेटमधील उद्या ग्रुप ईचे सामने आपण पाहणार होतो. 8 संघ एकमेकांसमोर ठाकताना पाहायला मिळतील. त्यामध्ये झेंडा स्पोर्ट्स आडगाव आणि ओळी संघासमोर विजयाचा झेंडा गाडतोय का हे पाहायचं आहे. त्यानंतर गावदेव लकासाठी आई स्पोर्ट्स मोगलपाडा संघाविरुद्ध जयदुर्गा गोवे संघ जय संपादन करतोय का हे पाहायला मिळेल. त्यानंतर दर्शेलून पोगाव जो तालुका क्रिकेटमधील एक नामांकित संघ आहे त्या संघासमोर राधाकृष्ण क्रिकेट क्लब टोंडरे संघाचं आव्हान असणार आहे. उद्या आणखीन एक मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. विकास इंटरप्राइज वीर तानाजी दापोडे संघाचे वीर काय करामत करतील सुमित कुमार करावे संघासमोर हे पाहावं लागेल. करावे संघाचे फलंदाज गोलंदाज काय करतील हे आपण पाहणार आहोत. दापोडे विपक्ष करावे या लढतीमध्ये. त्यानंतर ग्रुप आय मधील सामना भूमेलन मांडा विपक्ष गावदेवे अंजुरपे आणि त्यानंतर साईस खारबा विपक्ष वेदविलन धाने. कोणचं नाव 73 रनों की चुनौती रखी है यहाँ पर वाडेगढ़ के सामने. और सुभाष, इस तरह के जो स्कोर्स रहते हैं उसको पाने के लिए आपको मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट करना होती है. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं एनसीबी ट्रॉफी 2022 की अद्भुत और रिकॉर्ड ब्रेकिंग दुनिया में. रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये है कि आपने देखा 33 बाइक हैं, कार है. आपने देखा पहली मर्तबा टेनिस दुनिया में एयर कंडीशन वीआईपी बॉक्स है. तमाम सहूलतें अल्टीमेट और यूनिक है. खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर अतुल भोईर और उनके साथ संदेश रितेश सिद्धेश पाटिल हैं. हाँ सर बोलिए. किधर अभी प्राप्त समाचार के अनुसार के पायगांव में बारिश हो रही. मौसम ने करवट ली है, लेकिन यहाँ करवट लेते हैं कि नहीं बल्लेबाज. पहली गेंद ब्लॉक होल्ड में थी. हल्की छोटी बैकलिफ्ट से ड्राइव किया कवच में. 1 रन से खाता खुला. अतुल भोईर का खाता खुला यहाँ पर वाडेगर का. 1 रन बिना किसी विकेट के. 73 की चुनौती है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गेंदबाज अक्षय पाटिल. फिर जड़ में गेंद थी. फिर छोटी बैकलिफ्ट से गेंद को कवच में खेला. जोखिम बड़ा रन पूरा किया. बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है. जड़ में दोनों गेंदें थी. ऊंचा कद है अक्षय पाटिल का और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं. यही कारण है कि गेंदों को बहुत ज़्यादा मूव भी कराते हैं. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अक्षय पाटिल. इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव बल्ले की जड़ से खेला है. डीप मिड विकेट पे 1 रन बना. 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं. सिंगल्स में रन आ रहे हैं. 3 रन बने हैं और दोनों ओपनर अगर 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं विजेंद्र दलवी ने कहा है कि दोनों में से कोई भी बैट्समैन 50 रन मारता है तो 5,000 का इनाम दिया जाएगा. लेकिन तीनों गेंदें अक्षय पाटिल ने सुभाष जड़ में की है. कोई रूम नहीं दिया है. और जड़ में जब गेंदबाजी होती है तो बैट्समैन कठिनाइयों में रहता है.
रूम बना के खेलने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, जबरदस्त बॉलिंग। नक्कीच राहुल साल्वे याची अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. राहुल साल्वी गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि 12वें खिलाड़ी ने पहले अलग नाम बताया था। ये हमारा वीआईपी एयर कंडीशन बॉक्स देख रहे हैं, टेनिस क्रिकेट का नया आविष्कार। क्रेडिट जाता है केतन तरे साहब, सुनील घरत और गावदेवी अंजूर को। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए राहुल साल्वी इस मर्तबा गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, बढ़िया। ओ माय गॉड, कैच जरूर छूटा है, लेकिन बढ़िया कोशिश वहां पर। नक्कीच चांगला प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि हा झेल जर घेतला गेला असता तर 1983च्या विश्वचषकाची आठवण ताजी झाली असती. मेरे मुंह की बात आपने छीनी है, जब कपिल देव ने विवेन रिचर्ड का कैच लगभग 30 गज के दायरे से जाते हुए बाउंड्री के करीब पकड़ा था। साल्वी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं मैंडेटरी पावर प्ले में। इस मर्तबा इंप्रूव इस तरीके से खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। फिर कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चौकाने संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय वाढून झालेली, धावपलकावर 8 धावा. 1 ओवर की समाप्ति पे 8 रन बने। ये देखिए बैठक खेला था वहां पर। फाइन लेग के फील्डर ने बहुत बढ़िया कोशिश की थी, लेकिन इसे कहते हैं मौका भी दिया और चौका भी, लेकिन वन ऑफ द टफ चांस। अगदी बरोबर, हा पण टफ चान्स आपल्याला पाहायला मिळाला. ती 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन बचे हुए 4 ओवर में। यहां से 65 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है शुभात धुमाल, वो 16.25 का हो गया है. अगदी बरोबर, कारण या इनिंगला सुरुवात होण्या अगोदर 14.6 सरासरी आवश्यक हवी होती. मात्र पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय पिवनच्या पहिल्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करता आलेली आहे आणि परिणामस्वरूप जो आस्किंग रन रेट आहे तो आता मात्र वाढला गेलेला आहे. देखिए कि क्लाइमेट चेंजेस के असर क्या है. डॉक्टर गवली सर का कहना है कि पायगांव में रिमझिम नहीं बल्कि जोरदार बारिश हो रही. अगदी बरोबर, खारबावपासून पायगाव ज्यावेळी साई स्पोर्ट्स खारबाव आयोजित स्पर्धा सुरू होती स्वर्गीय आत्माराम गुळवे चषक, त्यावेळी तिथे पाऊस कोसळला होता आणि आजही मात्र त्या परिसरामध्ये पाऊस कोसळताना पाहायला मिळतोय. यस, कारण टेम्परेचर जर बघितलं बाबे सर तर खूपच वाढलेलं आहे. लेकिन मैच का टेम्परेचर बढ़ता या नहीं, गेंदबाजी के लिए अब अक्षय पाटिल को लगाया गया है. जो सामने का छोड़ है लोधा एंड से, उनका सामना करेंगे बैट्समैन सिद्धेश पाटिल. यहाँ पर वाडेकर को रनों के लिए जाना होगा. आस्किंग रन रेट बढ़ चुका है. कदमों का इस्तेमाल, बैकफुट पे गए, पंच किया, फ्रंट फुट पे आकर गेंद जा रही है डीप कवर में. बढ़िया फील्डिंग डीप में, 2 रन. पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे और दुनिया की क्रिकेट में एबी डिविलियर्स ऐसे बैट्समैन थे जहां से कमिट होते थे वहीं से गेअर बदलते थे. अगदी बरोबर, एबी डिविलियर्स खेळताना IPL स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालं. मात्र मुंबई इंडियन्स संघाने एक नवीन छोटा एबी बेबी आणलेला आहे, ज्या फलंदाजाने खूपच आकर्षित कामगिरी केली आहे. कारण अंडर-19च्या वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिका संघाकडून या खेळाडूने चांगली कामगिरी केली होती आणि सध्या IPL स्पर्धेमध्ये मुंबई इंडियन्समधून हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. 7 मैचेस मेरे ख्याल से हार चुकी है मुंबई इंडियंस. कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया, गेंद बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई, 1 रन. 1 से कुछ भी नहीं होगा, ये पता है वाडेकर के भी कैप्टन को और ये पता है नवी मुंबई के कैप्टन को भी. कुल स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट के, 11 विदाउट लॉस. एनसीपी ट्रॉफी का तामझाम चलता रहेगा. कल देखना ना भूलिए, 1 से बढ़कर 1 मैचेस. अगदी बरोबर, उद्या संडे स्पेशल, सुपर संडे का पैकेज एनसीबी का. पटकी भी गेंद बाउंसर थी और अब जाकर अंपायर ने वाइड घोषित किया है. अंपायर परेश का भी अलग अंदाज है. वाइड देते हुए अपने बाहों को ऐसे खोल रहे हैं मनो मोहब्बतों के शाहरुख खान किसी को बुला रहे हो. अगदी बरोबर, अंदाज अपना अपना. विकेट कीपर ने कुछ जाकर कहा है वहां पर अक्षय पाटिल से.
हालांकि अक्षय पाटिल ने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की थी। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मर्तबा गेंद को हवा में खेल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक और बॅट्समॅन आउट। इसे कहते हैं फटका फसला आणि बॅट्समॅन ठसला। अगदी बरोबर. आणि अशा प्रकारे आणखीन एक फलंदाजा जो मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता तो मात्र बाद झालेला आहे. यही तो हम चर्चा कर रहे थे शुभा धुमाल के बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते टीमें या तो निखर जाती है या तो बिखर जाती। क्या शुभा धुमाल ये सही है कि 12 मार्च 2006 में वो 439 का लक्ष्य छुआ गया था? अगदी बरोबर आहे. 12 मार्च 2000 ती तारीख कोण विसरू शकेल. त्याच दिवशी ही घटना घडली गेली होती. ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघाने ते लक्ष्य सर केलं होतं आणि दोन्ही इनिंगमध्ये शतके पाहायला मिळाली होती. पहिल्या इनिंगमध्ये रिकी पॉन्टिंगचं शतक आणि त्यानंतर हर्षल गिप्सचं शतक. और 1 मिनट के लिए मैच को रोका जाए, अंपायर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। और 12 जनवरी 2018 को भिवंडी टेनिस क्रिकेट में हाईएस्ट टोटल को चेस किया था बी इंडियन ने धनेश के सामने। लेकिन सुभाष ये बताइए कि ग्रामीण का इस तरह का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है और कितने रन चेस किए? सतीक बाबे सर, ओव्हरऑल ग्रामीण क्रिकेटचा जर विचार करायचा झाला तर याच मैदानावर काकडवाल संघाचा जो 114 धावांचा विक्रम होता तो चेरुबा कोणगाव संघाने चेस केला होता. यस, नवी मुंबई के कैप्टन आपको जरा ऑर्गेनाइजर से आके मिलना है। नवी मुंबई के कैप्टन शतरक्षण सजवायचे, सामना सुरू करायचा आहे. भगवा चषकाचे आयोजक हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. रायसाहेब पाटील ज्याच्या माध्यमातून कल्याणचा एक मोठा चषक आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळत आहे. अक्षय पाटिल सामना करेंगे अब बैट्समैन सिद्धेश पाटिल। देखिए वाडेकर एक ऐसी टीम है जो कभी भी गेयर बदल सकती है, लेकिन बदलना होगा क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। अगदी बरोबर. आणि सर्वांच्या नजरा या फलंदाजावर असणार आहे सिद्धेश पाटील. नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त प्रणीत पाटिल हैं और लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड गेंद। प्रणीत पाटिल नॉन स्ट्राइक पर है, सिद्धेश सामना करे अक्षय पाटिल का। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। एनसीबी ट्रॉफी में देर रात आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैकफुट पे गए, कंट्रोल शॉट खेला है, कट जरूर किया है, पॉइंट पे चली गई गेंद, 1 रन। 73 धावांचं एक मोठं लक्ष्य आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण बाबे सर पाहतोय की जय जलेश्वर वाडेकर संघाच्या फलंदाजांना खूपच घाम घालावा लागतोय. ये देखिए नीचे बैठने का अलग मजा है, एसी बॉक्स में बैठने का अलग मजा है। जो हमारे मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा ये आविष्कार है। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाढचा शर्यत आहे. आव्हान वाढच्या रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढून झालेली धावफलकावर 15 धावांची नित्यंत आवश्यकता आहे. धावा येणं महत्वाचं आहे. मग धावा कशा येत? 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। यू आर वॉचिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूर्नामेंट एनसीबी ट्रॉफी 2022।
गेंदबाजी करें अक्षय, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बहुत बढ़िया गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद बल्ले के करीब से जाती हुई बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई, ये देखिए मोमेंट भी कितना अच्छा था, टिप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग होकर बाहर गई थी. नक्कीच अतिशय सुरेख चेंडू पडल्यानंतर चेंडू बाहेरच्या बाजूने वळला होता आणि फलंदाज पूर्णपणे अचरिचकित होतोय. राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा स्लाइस किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन. नजाकत ज्यादा, ताकत कम, मिनिमम एफर्ट मॅक्झिमम रिझल्ट. वेगाचा चांगला वापर केला होता फलंदाजाने. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे हा फटका खाल्लेला आहे. शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर करताना दिसतोय फलंदाज आणि मौके पे चौका. देखिए इस तरह के शॉट्स के जो खालिक रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर रहे हैं. आज उनका जन्मदिन है और 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं कि स्कोर हुआ है 19. बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से जो रन है वो चाहिए 54. इथून मात्र हायलाइट्स क्रिकेट खेळावं लागेल जय जलेश्वर वाडेकर संघाला हा सामना जर जिंकायचा असेल तर. देखिए शुभा धुमाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद माना कि बहुत मजबूत स्थिति है नवी मुंबई की, लेकिन क्रिकेट है, कहते हैं कि नसीब बदलते देर नहीं लगती और मैच पलटते देर नहीं लगती. ये तमाम ऑर्गेनाइजिंग टीम के सितारे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं. विश्वास मात्रे भी वहाँ पर है, कुणाल भी है. गोल्डन मॅन आपण टी मॅन ही म्हणूया. सिद्धेश तरे जे त्यांची खूप चांगली मेहनत या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. हसमुख लड़का 19 रन 1 विकेट, 3 ओवर में 54 चाहिए. ये एंजॉयमेंट है और क्यों ना हो. गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा गया है राहुल साल्वी को. राहुल साल्वे, आविष्कार साल्वे एक मोठं नाव आपण पाहिलेलं आहे आणि इथे राहुल साल्वे आपल्याला पाहायला मिळते. हालांकि अच्छी रफ्तार है उनके पास, अच्छा कद है और लंबे रनअप से मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक ताल्लुक है वाडेगर टीम का, क्योंकि यहां से उन्हें लगभग 20 के करीब देखना होगा, क्योंकि आस्किंग रन रेट लगभग 19 के ऊपर जा चुका है. अगदी बरोबर निर्णायक षटक असणार आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या दृष्टीने. साल्वी मुड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, गेंद की लेंथ को खींची भी लेंथ थी, बीट किया वहां पर और अच्छी नोकझोंक चलती हुई. दोस्तों ये तमाम नोकझोंक, ये तमाम गर्मा गर्मी, ये तमाम तूतू मैं आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीबी ट्रॉफी 2022 में. अगदी बरोबर. ये तो झांकी है, अभी बहुत दिन बाकी है. क्या बात है, बहुत कुछ क्रिकेट भी बाकी है, बहुत कुछ चार्म और अट्रैक्शन बाकी है. साल्वी मुड़ते हुए फिर कदमों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, 1 रन बना और दूर से जब तक गेंद को उठाते 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 21. अब गेंदें काफी कम होती जा रही है, 16 गेंदों में 52 रन. इस तरह के लक्ष्य मेरा अपना मानना है कि 100 में से 2 मैच में पूरे होते हैं. साल्वी मुड़ते हुए स्विच हिट, बेहतरीन शॉट, गैप में ट्रैवल करती हुई 4 रन. आप कह दिया है बल्लेबाज सिद्धेश ने भी, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. अगदी बरोबर आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे. हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळला होता. रिवर्स फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. और शुभा धुमाल जहां तक ताल्लुक है, इस तरह के मैचेस जीतने के लिए बल्लेबाजों को जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना होती है, क्योंकि इस तरह के मुकाबले रोमांचक हो जाते हैं अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करें तो. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए साल्वी खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, नहीं रुकेगा, 6 रन. जबरदस्त फटका, जबरदस्ती करताना फलंदाज सिद्धेश पाटील याच्या बॅटमधून. सिद्धेश ने भी ऐलान कर दिया है, आज की देर रात आर या पार, हम नहीं या तुम नहीं. अगदी बरोबर आहे. सिद्धेशाने सिद्ध केलेलं आहे की तो शेवटी लढणार.
14 गेंदे 42 रन। एक बड़ा शॉट आएगा, देखिए कप्तान आ गए समझाने के लिए गेंदबाज के पास। क्या कर रहे हो? वहां नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन बल्लेबाज सिद्धेश को कह रहे हैं जो कर रहे हो सही कर रहे हो. अगदी बरोबर. आणि तुम्ही नेहमीच उल्लेख करता सध्या ऍड खूपच जोरात सुरू आहे, दे देना आराम से. बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं दे देना आराम से. 2 दे चुके हैं सालवी. फिर कदमों का इस्तेमाल, हालांकि बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी है, डीप कवर में गई है. दूसरा नहीं मिलेगा. थ्रो अब जाके और थ्रो, इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका. 2 रन आते हुए स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ वाडेकर का 33 रन. मैच अब बन गया है 13 गेंदे 40 रन. इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं शुभात धुमाल, गेंदबाज पे प्रेशर ज्यादा आता है क्योंकि बल्लेबाज को मालूम है कि कैप्टन 7 गुना माफ कर देगा, लेकिन मैच को अगर जिता दिया तो एक रात का सुल्तान बन जाएगा. अगदी बरोबर, ॲब्सोल्युटली ट्रू. अगदी योग्य तो उल्लेख केला सिद्दीक बाबे सरांनी. फलंदाजावर कुठल्या प्रकारचं प्रेशर नसतो, मात्र गोलंदाजावर जास्त प्रेशर इथे पाहायला मिळेल. व्हाट अ मैच. देखना है कि अंपायर वहां क्यों जा रहे हैं. दोनों वहां पर बैट्समैन भी हैं. ये देखिए डगआउट में अभी भी निराशा नहीं है, आशा है, और शायद उनको भरोसा है कि उनके बल्लेबाज कुछ कहेंगे. लेकिन नवी मुंबई की टीम भी यहाँ इसलिए आई है कि उनको आगे बढ़ना है, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम ग्रुप डी की सबसे छोटी की टीम हो जाएंगी. ये मैच दोनों टीमों के लिए करो मरो का मैच है. सिद्धेश पाटील केल्पेटोर आहे आणि नक्कीच आशा असणार आहे. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सालवी. फिर से फोर्सिंग स्ट्रोक, फील्डर है और सिद्धेश आउट लॉन्ग ऑन पे. बड़ी विकेट गिरती हुई यहां पर, और 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 33. 2 ओवर में 40 चाहिए. अपने सर को हिलाते हुए वहां पर सिद्धेश जिस तरह वो आउट होके जा रहे, लेकिन अच्छी बारी के लिए. देखिए जगह सही नहीं चुनी थी, क्योंकि जबरदस्ती में एक आधा स्ट्रोक जबरदस्त निकल जाता है. ये देखिए, और अतिरिक्त उछाल भी था गेंद पर. अगदी बरोबर, फटका बनवू शकला नाही आणि जे अंतर कापायला होते ते अंतरी चेंडू कापू शकला नाही. आणि क्षेत्र खरं तर निवडलं होतं, बाबी सरांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे ते क्षेत्र पूर्णपणे चुकीचं होतं. वंडरफुल टेलीकास्ट. क्या टेलीकास्ट हो रहा है. मिरेकल ऑफ टेनिस क्रिकेट, tenniscricket.in का टेनिस क्रिकेट का अजूबा टेलीकास्ट, मिरेकल टेलीकास्ट. जी आशेची किरण होती बाबे सर, ती आता मात्र मावळताना एकमेव असा फलंदाज सिद्धेश पाटील ज्याच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, कारण अशा सिच्युएशन मध्ये बरेच सामने सिद्धेश पाटील याने वाडेकर संघाला जिंकून दिलेले आहेत. तो बाद झाल्यानंतर मात्र थोडंसं संघ बॅकफुटला गेलेला आहे. लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि मैच सेकंड लास्ट ओवर में साफ हो जाएगा कि ऊंट किस करवट. ये देखिए मैन बिहाइंड शो, केतन तरे साहब को बाउंड्री लाइन से मैच देखते हुए दिखाया जा रहा है. विश्वास मात्रे उनके साथ हैं, कुणाल है, केएम कुणाल मात्रे. कुणाल मात्रे का भी जो क्रिकेट रहा है वो बहुत जबरदस्त रहा है. नक्कीच कुणाल मात्रेंचा उल्लेख केला, खास करून SP दापोडे संघामधून खेळताना कुणाल मात्रे खूपच चमकला होता. और दापोटी की टीम तो उस सीजन में ऐसा खेल रही थी मानो बी इंडियन जैसी टीम को उन्होंने पछाड़ा था बालाजी कप के फाइनल में, और लगभग उस सेमीफाइनल तक बाली ट्रॉफी 2018 के भी गए थे. खेल की शुरुआत, उछाल दिया गया इनको सीधा तीर की मानिंद, और गेंद देखना है पहले बाउंस पे 4 रन. शुभात धुमाल, मैच और गर्म होता हुआ. अगदी बरोबर, हॉट क्लायमेट आणि हॉट मॅच आपण बघतोय. या चौकारीने जणू काही फलंदाजाने सांगितले पिक्चर बाकी मेरे दोस्त. बिल्कुल, ये देखिए सीधा खेला, सबसे सेफ स्ट्रोक 4 रन, 11 गेंदे 36 रन.
किशोर पाटिल फिर बैकफुट पे गए, फिर फोर्स किया, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे और आउट हो गए बैट्समैन प्रणीत पाटिल। देखिए इस तरह के जो स्कोर रहते हैं इस तरह रिजल्ट आना जरूरी है, लेकिन कहते हैं कि आप विकेट हाथ में रख के हारे उससे बेहतर है कि आप लड़ के हारे। अगदी बरोबर आहे, कारण असे जे सामने असतात त्या सामन्यामध्ये फटकेबाजी तर करावीच लागते आणि फटकेबाजी करताना फलंदाज जरी बाद झाले असले तरी मात्र आपण पाहतोय त्या संघाचं कौतुकही केलं जात आहे। ये देखिए किस तरह से फोर्सिंग स्ट्रोक खेला था, इस तरह देर रात फोर्सिंग शॉट इन फ्रंट ऑफ द विकेट इतने सफल नहीं होते हैं जहां तक खेलना चाहिए। 10 गेंदे 36 रन। नए बैट्समैन कपिल पाटिल हैं जबकि सामना कर रहे हैं प्रशांत पाटिल। स्ट्राइक पे कपिल पाटिल हैं, नॉन स्ट्राइक पे प्रशांत है। ये जो 4 गेंदे शुभात धुमाल ये वाडेगर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बड़ा शॉट आएगा, 2 बड़े शॉट आएंगे तो आशाएं जीवित रहेंगी। अगदी बरोबर, हे 4 चेंडू निर्णायक चेंडू असणार आहेत खास करून वाडेगर संघाच्या दृष्टीने। धावसंख्या 33। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया, रन चुरा लिया। वहां पर एक ओवर थ्रो हुआ है, 2 रन बने। अंपायर का क्या निर्णय आता है? वाइट। 2+1 3 रन बोनस के आते हुए स्कोर वाडेगर का पहुंचा है 40 रन। 33 रन चाहिए 10 गेंदे। लग रहा है कि ये मैच रंग लाएगा। जिन लोगों की आंख झपक रही थी वो भी अभी पूरी तरह उठ के बैठ गए। धावसंख्या आपण पाहतो धावपैकी करून 40 धावा। 10 चेंडू मध्ये 33 धावांची आवश्यकता आहे। दीपेश तारे यांचं आगमन झालेलं आहे। सुई चीट की कोशिश, देखना है बेल्स भी गिरे हैं, क्या कुछ हुआ है। यस इज देखने अंपायर अमित वाघमारे ये बताइए कि बैट्समैन आउट हो चुका है। हिट विकेट, यस हिट विकेट हुए। फलंदाज संचित झालेला आहे, अर्थात हिट विकेटच्या रूपाने फलंदाज बाद होतोय। बहुत ज्यादा पीछे थे, अपना जूता उनका स्टंप से टकरा गया और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं भारी भरकम मजबूत काटी के स्वप्निल भुएर। देखिए वाडेगर टीम का कल्याण तालुके में एक बहुत बड़ा नाम है और ये टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, आज भी किया उन्होंने। और नवी मुंबई की जो टीम है वो नवी मुंबई परिसर में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। यहां पर एक बात शुभात धुमाल कहूंगा, यहां आप सांस या दम नहीं ले सकते। ये इतनी बड़ी स्पर्धा है, इसमें आपने एक ओवर को भी छोड़ दिया मानो आपने कप को छोड़ दिया। अगदी बरोबर, आणि आपण जर कपला सोडला तर पुन्हा एकदा 365 दिवस या चषक्याची आपल्याला वाट पाहावी लागेल। एग्जैक्टली अब ये गेंदे काफी इंपॉर्टेंट है। 3 गेंदे 9 गेंदे जो बची है, 9-33 का इक्वेशन। स्वप्निल जो कि सबसे अनुभवी क्रिकेटर हैं वाडेगर के, लॉब करने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक और सॉफ्ट डिसमिसल। आउट हो गए स्वप्निल 0 पर। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला होता, मात्र मिस्टर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फलंदाज बाद झाला होता। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अब छूटती हुई नजर आ रही है। राइट आर्म राउंड विकेट में कोन बनाया था और जब कोन बनता है तो गेंद के मेरिट पे आपको बल्लेबाजी करना होती है। अगेंस्ट दी कोन जब आप खेलते हैं तो अधिकांश बार लीडिंग एज लगता है। अगदी बरोबर, आणि लीडिंग एज लागली होती। गोलंदाज मात्र विकेट हॅट्रिक वर आहे। 3 हैट्रिक। हिट विकेट गेंदबाज के हक में जाता है, हैट्रिक पे आ गए हैं गेंदबाज, हैट्रिक पर हैं। देखना है चौथी हैट्रिक होती है या नहीं, और क्या हैट्रिक हो गया, यस। और ये देखिए जश्न
ताली पे तालियां दी जा रही है और हैट्रिक चौथा हो चुका है अब तक एनसीबी ट्रॉफी 2022 में. व्हाट अ बॉलिंग. आज के दिन 3 हैट्रिक हो चुके हैं. इसका मतलब है कि आज का दिन गेंदबाजों के नाम ज्यादा रहा है. अब वाडेगर की जो आशाएं हैं वो थोड़ी मान पड़ती भी, क्योंकि यहां से काफी रन चाहिए. राइट आर्म round the stumps. Yorker, yes, he's out. एक और विकेट, 4 पे 4, डबल हैट्रिक. It has been a great bowling from Kishore Patil, the Naneshwar Sport Diva, Navi Mumbai. This is the class bowling. एक ओवर में काम तमाम कर दिया. देखिए नू बगदादी जो जयेश पाटिल के बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने इस ऑर्गेनाइज के लिए बालिया मामा, केतन तरे, सुनील गरत और गावदेवी अंजूर को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं. देखिए किस तरह 4 पे 4 विकेट गिरे. वंडरफुल टेलीकास्ट. डबल हॅट्रिक ज्याला क्रिकेटमध्ये म्हटलं जात आहे. पूरा ओवर दिखाया जा रहा है. ये देखिए, ये पहला विकेट गिरा था जब हिट विकेट हुए थे बैट्समैन, और ये दूसरा विकेट जब स्वप्निल पाटिल आउट हुए थे, क्रॉस द लाइन गए थे, गेंद ऊपर आसमान में खड़ी रह गई. एक और विकेट, ये हैट्रिक विकेट है. बहुत बढ़िया विकेट. ऑन साइड में खेलने की कोशिश, ऊपर लगी थी, सॉफ्ट डिसमिसल. और ये चौथी विकेट हम देखने जा रहे हैं जो एलबीडब्ल्यू के रूप में थी. अंपायर परेश. टोकरेशर. अंपायर के मन में कोई भी शंका नहीं थी. टोकरेशर. अगदी बरोबर. चांगला निर्णय पंचांचा पाहायला मिळाला होता. यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पडल्यानंतर निघून जातोय या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. आता मात्र आपण म्हणू शकतोय की पूर्णपणे पकड मजबूत केलेली आहे दिवा नवी मुंबई या संघाने या सामन्यावर. आणि वाडेकर संघ पूर्णपणे बॅकफुटवर, पिछाडीवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. फाईन केलेला आहे चेंडूला एका धावेसाठी. मागील षटकामध्ये किशोर पाटील यांनी डबल हॅट्रिक सलग 4 चेंडूमध्ये 4 विकेट घेण्याचा कार्यक्रम केलेला आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे 4 गोलंदाज आहेत ज्यामध्ये लसित मलिंगा, त्यानंतर अफगाणिस्तानचा रशीद खान आणि नुकतंच जेसन होल्डर यांनी हा कारनामा केला होता. लसित मलिंगा एकमेव असा गोलंदाज आहे ज्याने हा कारनामा वन डे मध्ये विश्वचषकामध्ये दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध केला होता आणि त्यानंतर T20 मध्ये हा कारनामा त्याने केला होता. यावेळी मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न चांगल्या चेंडूच्या हाताळणे आणि पुन्हा आपण पाहतो या निर्धाव चेंडू समाप्ती. जवळजवळ पराभव मान्य केलेला आहे जय जलेश्वर वाडेकर संघाने, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. आणि विजयाकडे अगुगूच करताना आपण पाहतोय ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई. पूर्णपणे शरणागती पत्करलेली आहे ती वाडेकर या संघाने. मग वाडेकर संघाचं कौतुक करावं लागेल. या सामन्याच्या अगोदरपर्यंत वाडेकर संघाने चांगले क्रिकेटचा परफॉर्मन्स या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये केलेला आहे, आजच्या दिवसामध्ये केलेला आहे. यावेळी चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडूवर येतोय, झेल मात्र पकडला. तर अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे. तो ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई संघाने अभिनंदन. ज्ञानेश्वर स्पोर्ट्स दिवा नवी मुंबई अँड हार्ड लक जय जलेश्वर वाडेकर. हे स्कोर कार्ड आपण पाहू शकता. ओमी केनियाच्या 17 चेंडूमध्ये 41 धावा, त्यानंतर 6 चेंडूमध्ये अक्षय पाटीलच्या नाबाद 14 धावा, त्यानंतर गोलंदाजी करताना किशोर पाटील याची अतिशय उत्कृष्ट मॅजिक गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली.